ویلکم 11 اسٹار مسٹریز. ہم آپ کے لیے سچی کہانیاں لاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. چلتے ہیں کہانی کی طرف. دہلی کے گنجان آباد علاقے براری کے سنت نگر میں 1 جولائی 2018 کی صبح ایک ایسی خاموشی لے کر آئی جو عام دنوں سے بالکل مختلف تھی. گلی نمبر 2 میں واقع شہاوت خاندان کی گروسری کی دکان، جو عام طور پر صبح 5:30 بجے کھل جایا کرتی تھی، آج 6:30 بجے تک بند تھی. محلے کے ایک معزز بزرگ اور پڑوسی گردھاری لال، جو پچھلے کئی سالوں سے اسی دکان سے دودھ کی تھیلیاں لیتے تھے، دکان کے باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے. انہیں حیرت تھی کہ ہمیشہ وقت کی پابندی کرنے والا یہ خاندان آج اب تک سو رہا ہے. تجسس کے عالم میں گردھاری لال نے گھر کا رخ کیا. انہوں نے دیکھا کہ لوہے کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، جو کہ غیر معمولی بات تھی. وہ سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل پر پہنچے اور جیسے ہی لکڑی کے بھاری دروازے کو دھکیلا، ان کے حساس جواب دے گئے. ہال کے وسط میں لوہے کے ایک بڑے جال سے 10 انسانی لاشیں لٹک رہی تھی. ان کی آنکھوں پر سفید اور رنگین کپڑوں کی پٹیاں بندھی تھی، کانوں میں روئی ٹھسی ہوئی تھی اور من پر ڈاکٹروں والی ٹیپ لگی تھی. ان کے ہاتھ پشت پر بجلی کی تاروں اور کپڑے کی پٹیوں سے مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے. یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ گردھاری لال کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی. وہ ہانپتے ہوئے نیچے بھاگے اور گلی میں موجود لوگوں کو اکٹھا کیا. پولیس کنٹرول روم کو صبح 7:15 پر کال موصول ہوئی. جب انسپکٹر راجیو بھردواج اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے تو وہ خود کئی سالوں کے تجربے کے باوجود لرز اٹھے. 10 لاشیں ہال میں دائرے کی شکل میں لٹکی ہوئی تھیں، بالکل ایسے جیسے کسی درخت کی شاخیں نیچے کی طرف جھکی ہوتی ہیں. لاش خاندان کی سب سے بزرگ خاتون 77 سالہ نارائنی دیوی کی تھی، جو دوسرے کمرے کے فرش پر مردہ حالت میں پائی گئی. ان کے گلے پر بیلٹ کے نشانات تھے. پولیس نے فوری طور پر علاقے کو سیل کر دیا اور کرائم برانچ کو مطلع کیا. ابتدائی معائنے میں گھر کے اندر کسی زبردستی داخلے کے نشانات نہیں ملے. گھر کا سارا سامان اپنی جگہ پر تھا. خواتین کے کانوں میں سونے کے بندے اور ہاتھوں میں چوڑیاں تک سلامت تھی. گھر میں موجود قیمتی موبائل فونز اور نقدی کو چھوا تک نہیں گیا تھا. کچن میں آدھا گوندا ہوا آٹا رکھا تھا اور رات کے کھانے کے برتن دھلے ہوئے تھے، جو اس بات کی علامت تھی کہ خاندان کسی خودکشی کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ زندگی کی عام روٹین میں مصروف تھے. پولیس کے لیے یہ ایک ایسا معمہ بن گیا تھا جس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی تھی. محلے کے لوگ باہر جمع تھے اور ہر کوئی ایک ہی سوال کر رہا تھا: کیا اس ہنستے بستے خاندان کو کسی کی نظر لگ گئی یا یہ کسی انتقام کا نتیجہ ہے؟ شوہاوت خاندان، جسے مقامی لوگ بھاٹیا خاندان کے نام سے بھی جانتے تھے، تقریباً 20 سال پہلے راجستھان کے ٹونک ضلع سے دہلی منتقل ہوا تھا. خاندان میں دادی نارائنی دیوی، ان کے 2 بیٹے بھونیش اور للت، ان کی بیویاں سویتا اور ٹینا اور ان کے بچے شامل تھے. اس کے علاوہ نارائنی دیوی کی بیٹی پرتیبھا اور اس کی بیٹی پرینکا بھی اسی گھر میں رہتی تھی. پرینکا کی حال ہی میں منگنی ہوئی تھی اور پورا گھر شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا. محلے میں اس خاندان کی عزت ایک مثالی خاندان کے طور پر کی جاتی تھی. بھونیش اور للت دونوں بھائی مل کر پرچون کی دکان اور پلائی ووڈ کا کاروبار چلاتے تھے. وہ بہت نرم لہجے کے مالک تھے اور کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے. میں بات نہیں کی تھی. للت، جو گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، گھر کے تمام اہم فیصلے لیتا تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک بار ایک حادثے کا شکار ہوا تھا جس میں اس کی یادداشت اور آواز چلی گئی تھی، لیکن چند سال پہلے اس کی آواز معجزانہ طور پر واپس آ گئی تھی. اس واقعے کے بعد سے خاندان کے لوگ
ललित को एक खास मकाम देने लगे थे। तहकीकात के दौरान पुलिस ने खानदान के करीबी रिश्तेदारों से पूछगछ की, लेकिन किसी ने भी किसी दुश्मनी या माली परेशानी का जिक्र नहीं किया, बल्कि रिकॉर्ड से पता चला कि खानदान की माली हालत बहुत मुस्तहकम थी। उन्होंने हाल ही में अपने घर की तज़ीन व आराइश करवाई थी और नई गाड़ियां खरीदी थी। बच्चों की तालीम के हवाले से भी वो बहुत संजीदा थे। प्रियंका, जो मंगनीशुदा थी, एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करती थी और बहुत ज़हीन लड़की मानी जाती थी। ताहम घर की दीवार में लगे 11 परअसरार पाइपों ने पुलिस की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। ये पाइप घर की अकबी दीवार से बाहर की तरफ निकल रहे थे। महल्ले वालों का कहना था कि ये पाइप वेंटिलेशन के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि इनका रुख जमीन की तरफ था। हैरत अंगेज तौर पर इन पाइपों की तादाद भी 11 थी, बिल्कुल इतनी ही जितनी इस घर में रहने वाले अफराद की तादाद थी। 7 पाइप मुड़े हुए थे और 4 सीधे, जो खानदान की 7 खवातीन और 4 मर्दों की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या ये पाइप इसलिए लगाए गए थे कि मरने वालों की रूहें इनके जरिए बाहर निकल सके? ये वो सवाल था जिसने पुलिस को तहम परस्ती और काले जादू के जाविये पर सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बज़ाहिर ये एक कामयाब और जदीद खानदान था जो सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक रहता था और दुनियावी तरक्की में पेश था। केस की तफ्तीश में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू उस वक्त मिला। ब्रांच को घर के मंदिर के पास से 2 मोटी डायरियां और कुछ रजिस्टर मिले। इन डायरियों की लिखाई ने पुलिस के होश उड़ा दिए। ये डायरियां पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थीं और इनमें रोजाना की बुनियाद पर खानदान के लिए हिदायत दर्ज थीं। डायरियों का आगाज 2007 से हुआ था, जिस साल ललित के वालिद भोपाल सिंह का इंतकाल हुआ था। डायरियों के मुताले से पता चला कि ललित ने अपने खानदान को ये यकीन दिला रखा था कि इसके वालिद की रूह इसके जिस्म में आती है और उसे खानदान की बेहतरी के लिए हिदायत देती है। डायरी में लिखे गए जुमले कुछ इस तरह थे: तुम ये करोगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, घर में सफाई रखो, ललित की बात मानो। हैरत अंगेज तौर पर जब भी खानदान ने इन हिदायत पर अमल किया, उन्हें माली तौर पर फायदा हुआ। यही वजह थी कि खानदान के तमाम अरकान, जिनमें आला तालीम याफ्ता नौजवान भी शामिल थे, ललित की बातों पर अंधा एतबार करने लगे। डायरी के आखिरी सफ़हात में एक हौलनाक रस्म का जिक्र था, जिसे बड़ पूजा या बरगद की पूजा का नाम दिया गया था। इस रस्म की तफसीलात इतनी बारीक बीनी से लिखी गई थीं कि पढ़ने वाला कांप जाए। इसमें लिखा था कि तुम सबको एक दायरे में लटकना है, बिल्कुल इस तरह जैसे बरगद के दरख्त की शाखें जमीन की तरफ लटकती हैं। डायरी में हिदायत दी गई थी कि आंखों को मजबूती से बंद करना है ताकि तुम अपने अंदर के अंधेरे को देख सको। मुन्हा पर टेप इसलिए लगानी थी ताकि कोई चीख ना निकले, और कानों में रोई इसलिए ताकि बाहर की दुनिया की आवाज मुदाखलत ना करे। ललित ने अपने खानदान को यकीन दिलाया था कि ये मौत का खेल नहीं है, बल्कि एक रूहानी मश्क है। डायरी में वाज़ेह लिखा था, घबराने की जरूरत नहीं। जब तुम सब हवा में लटक जाओगे तो ऐन उस वक्त जब तुम्हारा दम घुटने लगेगा, मैं वालिद की रूह जाहिर होऊंगा और तुम सबको बचा लूंगा। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हें ऐसी गैबी ताकतें मिलेंगी कि तुम दुनिया पर राज करोगे। यही वो खतरनाक वहम था जिसने एक पूरे खानदान को मौत के धंधे तक पहुंचा दिया। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि वो जिस मौजज़े का इंतजार कर रहे हैं वो कभी नहीं आएगा। पुलिस के लिए यह समझना मुश्किल था कि 11 लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, एक ही वक्त में इस पागलपन पर कैसे राजी हो गए। ये एक टेलेक्टोसाइकोसिस था, जहां एक शख्स का पागलपन पूरे ग्रुप की सच्चाई बन गया था। 30 जून 2018 की रात दिल्ली में हब्स और गर्मी थी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के मुताबिक रात के तकरीबन 10 बजे खानदान की 2 खवातीन, टीना और उसकी बेटी,
करीबी दुकान से 5 प्लास्टिक के छोटे स्टूल खरीद कर लाती हुई नजर आई। उनके चेहरों पर कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो बहुत पुरसुकून थी। थोड़ी देर बाद घर का एक बच्चा थरो नीचे से वो बिजली की तारें लेकर आया जो आम तौर पर घरों में वायरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये वही तारें थीं जिनसे बाद में फंदे बनाए गए। रात के 11 बजे खानदान ने आखिरी बार खाना खाया। उन्होंने बाहर से 20 रोटियां मंगवाई थी, जिनका ऑर्डर लिलत ने खुद दिया था। खाना खाने के बाद उन्होंने घर के पालतू कुत्ते जैकी को छत पर ले जाकर एक लोहे की जंजीर से बांध दिया, ताकि नीचे होने वाली रस्म के दौरान इसका भौंकना पड़ोसियों को अलर्ट ना कर सके। रात के 1 बजे के करीब डायरी की हिदायत के मुताबिक रस्म का आगाज हवा। लिल्लत ने सबको हॉल में इकट्ठा किया। हिदायत के मुताबिक हर एक ने दूसरे की आंखों पर पट्टी बांधी और हाथ पीछे करके बांधने में मदद की। लिल्लत और उसकी बीवी टीना ने सबसे आखिर में अपने आप को बांधा। डायरी में लिखा था कि रस्म के दौरान किसी को हिलना नहीं चाहिए, चाहे कितना ही दर्द क्यों न हो। सबसे पहले दादी नारायणी देवी को दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां लिल्लत ने मुबैयना तौर पर उन्हें बेलक से गला घोंटकर मार दिया, क्योंकि वो स्टूल पर नहीं चढ़ सकती थी। इसके बाद बाकी 10 अफराद हॉल में स्टूलों पर खड़े हो गए। घर में एक अजीबो-गरीब खामोशी छाई हुई थी। हर शख्स इस इंतजार में था कि जैसे ही वो स्टूल से नीचे उतरेंगे, वालिद की रूह नमूदार होगी। रात के तकरीबन 2 बजे एक एक करके सब ने स्टूलों को लात मारी। जैसे ही उनके गले में तारों के फंदे कसे, उनके जिस्मों ने तड़पना शुरू किया होगा, लेकिन मुन्हा पर लगी टेप ने उनकी सस्कियों को भी बाहर नहीं निकलने दिया। उनके पैर हवा में मुअल्लक हो गए और चंद ही मिनटों में वो घर, जो चंद घंटे पहले खुशियों से भरा था, एक शमशान घाट में तब्दील हो गया। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि ऊपर की मंजिल पर बंधे कुत्ते के अलावा किसी को कानो कान खबर न हुई। वो पाइप जो दीवार से बाहर निकल रहे थे, अब वाकई उनकी रूहों के बाहर निकलने का वाहिद रास्ता लग रहे थे। बरारी हाउस केस ने हिंदुस्तान के नामवर माहिरीन नफ्सियात को एक नई तहकीक पर मजबूर कर दिया। इस केस को तिब की जबान में फॉलिया डू या शेयर्ड साइकोसिस कहा गया। इस हालत में एक खानदान का सरबराह, जो आम तौर पर बहुत बाआसिर होता है, जहनी बीमारी का शिकार हो जाता है और रफ्ता रफ्ता अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इस बात पर यकीन दिला देता है कि इसके वहम ही हकीकत है। लित इस खानदान का वो सतून था जिस पर सब भरोसा करते थे, और इसने अपने वालिद की मौत के सदमे को एक माफौकुल फितरत रंग देकर पूरे खानदान को एक फर्जी दुनिया में कैद कर लिया था। तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि लित ने अपनी आवाज की वापसी को एक मौजिजे के तौर पर पेश किया था, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक ये एक कन्वर्जन डिसऑर्डर था, जहां शदीद सदमे की वजह से आवाज चली जाती है और सदमे के कम होने पर खुद ब खुद वापस आ जाती है। लेकिन लित ने इसे रूहानी ताकत का नाम दिया। समाजी तौर पर इस वाक़े ने एक खौफ की लहर दौड़ा दी। लोगों को ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि एक ऐसा खानदान जो मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल करता था, इंग्लिश बोलता था और जदीद माशरे का हिस्सा था, वो काले जादू या तवहम परस्ती की इस हद तक गिर सकता है। मीडिया ने इस घर को भूतिया घर करार दे दिया था। कई महीनों तक संतनगर की इस गली में लोग शाम के बाद जाने से कतराने लगे। अफवाहें गर्दिश करने लगी कि रात को घर के अंदर से 11 लोगों के हंसने की आवाजें आती है। रियल एस्टेट एजेंट्स का कहना था कि इस घर की कीमत करोड़ों से गिरकर पौड़ियों में आ गई है। कोई भी इस जमीन को खरीदने या वहां रहने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि मोहल्ले के बच्चों ने इस घर के सामने खेलना छोड़ दिया। पुलिस की चार्जशीट में ये वाजे किया गया कि यह कत्ल नहीं, बल्कि मरने के इरादे के बगैर की गई रस्म थी, जो गलत हो गई।
लेकिन अवाम के जहनों में यह सवाल अब भी बाकी था कि क्या कोई ताकत वाकई लित से बात करती थी, या क्या लित ने जानबूझकर अपने खानदान को खत्म किया। इस केस ने यह तल्ख हकीकत वाज़े कर दी कि बाज़ औकात इल्म और तालीम इंसान को अंधी अकीदत के अंधेरों से नहीं बचा पाते। इंसानी दिमाग की गहराइयां इतनी ही तारीक हो सकती है जितनी वो गली जहां यह हौलनाक वाकया पेश आया था। वाकये के 1 साल बाद जब कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल हो गई तो वो घर एक खामोश खंडर की मानंद खड़ा था। खानदान के दौर के रिश्तेदारों ने इस जायदाद को बेचने की कोशिश की, लेकिन 11 लाशों वाले घर का टैग हटाना नामुमकिन था। आखिरकार डॉक्टर वरिंदर कश्यप नामी एक शख्स ने इस घर को किराए पर लेने की हिम्मत की। उनका मकसद इस तौहम परस्ती को खत्म करना था कि वो घर मनहूस है। उन्होंने वहां अपनी पैथोलॉजी लैब खोली और अपनी फैमिली के साथ रहने लगे। डॉक्टर कश्यप का कहना है कि वहां कई सालों से रह रहे हैं और उन्हें कभी कोई गैर मामूली चीज महसूस नहीं हुई। खौफ सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, दीवारों में नहीं, वो अक्सर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद बरारी के लोग आज भी इस घर के करीब से गुजरते हुए अपनी रफ्तार तेज कर लेते हैं। वो 11 पाइप जिन्हें अब सीमेंट से भर दिया गया है, आज भी दीवार पर अपने निशान छोड़े हुए हैं, जो गुजरने वालों को इस हौलनाक रात की याद दिलाते हैं। नेटफ्लिक्स और कई डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ने इस केस पर फिल्में बनाई, जिससे ये कहानी आलमी सतह पर मशहूर हो गई। हाउस ऑफ सीक्रेट्स नामी सीरीज ने इस वाक़े की एक एक परत को खोल कर रख दिया। लेकिन हकीकत यह है कि इन 11 अफराद के साथ जो राज दफन हुए वो कभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ पाए। वो आखिरी लम्हात, वो आखिरी सस्की और वो आखिरी उम्मीद कि वालिद साहब बचाने आएंगे, ये सब अब सिर्फ तारीख के सफ़हात में कैद है। बरारी हाउस केस हमें यह सबक देता है कि इंसानी नफ्सियात कितनी नाजुक हो सकती है। एक छोटे से वहम का बेज अगर सही वक्त पर ना रोका जाए तो वो पूरे खानदान को निगलने वाला बरगद का दरख्त बन सकता है। आज भी जब कभी दिल्ली में बादल गरजते हैं या रात के सन्नाटे में कोई दरवाजा बजता है तो संत नगर के पुराने बासियों को वो 11 साए याद आ जाते हैं जो एक मौजिज़े के इंतजार में हवा में मुअल्लक़ हो गए थे। ये कहानी एक सच्ची वार्निंग है कि कभी-कभी सबसे बड़ा हॉरर हमारे अपने जहन के अंदर छुपा होता है, जो भूतों और चड़ेलों से कहीं ज्यादा ताकीर और महलक होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब 11 स्टार मिस्ट्रीज़।